right? In today's class, we will be starting to discuss from question number 7. Till yesterday, we discussed till question number 6. So it's a very simple question, not a, like if you go to question number 7, what it said, which one of the following makes a species most vulnerable to extinction? So this is directly from our ecology part notes, which was there, right? And like if you go by options, just simply by reading, you can correct it. Simply by going, you can correct it, right? So it says low density throughout a large geographical range and its several habitats. So let's discuss some general points before we enter into it. So guys, anyone will be susceptible to, if you talk about susceptible to extinction, when you will be having something like, just a minute, let me take. Okay, so let's first see what are the some specific conditions for the extinction. Like as all of you know that it should be like having a large body size for like more parasitic infection, right? Then less reproduction rate, right? Then less number of offspring. So these are some of the common characteristics which are there. But still, apart from that, if you say like the species should be endemic, so endemic might more easily become endangered and extinct because they are already restricted in distribution. Like if I take a single point, so I can write like endemic species are more easily become endangered followed by extinction, followed by their extinction, right? So this is observed because they are already restricted in distribution, because they are restricted to a particular place, right? To a particular place in terms of habitat. जो आप बोलते हो ना कि इसका हॉटस्पॉट है या एंडेमिक है स्पीशीज, ठीक है? उसके अलावा आपको पता ही है लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लेस रिप्रोडक्शन रेट, लार्ज बॉडी साइज. So these are some of the characteristics which make a species prone or more vulnerable to extinction. So now we will read one by one that which of the following condition is correct among the following. So if you go by this, if I see low density, so if you see here, it's saying low density throughout a large geographical range and several habitat type. ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आपने इसको large geographical range भी दी हुई है और बहुत सारे habitat भी है, so this could not be correct, right? तो आपको अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, कह रहा है लोकली कॉमन इन रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज एंड सेवरल हैबिटेट टाइप. फिर से सेवरल हैबिटेट दे दिए, सेवरल हैबिटेट नहीं देंगे, लिमिटेड हैबिटेट देंगे या 1 और 2 हैबिटेट, क्योंकि एंडेमिक होनी चाहिए ना उस जगह पे. तो ये भी गलत हो गया. अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं अच्छे से. इट सेज लो डेंसिटी थ्रू आउट अ लार्ज ज्योग्राफिकल रेंज एंड इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट. अब इस बार आपने ज्योग्राफिकल रेंज बड़ी दे दी, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया. इट शुड बी स्मॉल ज्योग्राफिकल रेंज एंड स्पेसिफिक हैबिटेट टाइप. It should be small geographical range and specific habitat. तभी तो बोलेंगे ना ये एंडेमिक है इस एरिया में, ठीक है? जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट आया था. तो ये भी गलत हो गया. लास्ट लाइन को देखते हैं, व्हाट इट सेज. डी, लोकली कॉमन.
लोकली कॉमन कहने का मतलब क्या है, एंडेमिक टाइप की स्पीशीज है, रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज, बहुत ही छोटी ज्योग्राफिकल रेंज में मिलती है, पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं पे मिलती है, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं पे मिलती है, एंड द लास्ट इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट टाइप। तो स्पीशीज मेरी एंडेमिक भी है, हैबिटेट भी छोटा है, और रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज भी है। सो दिस विल मेक अ स्पीशीज मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी डी। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे में, तो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ फटाफट से। इस वाले क्वेश्चन में क्लियर है सबको डी क्यों चूज किया हमने? क्योंकि स्मॉल ज्योग्राफिकल रेंज होनी चाहिए गाइस, स्मॉल ज्योग्राफिकल रेंज होनी चाहिए, और स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर हैबिटेट, एंडेमिक होनी चाहिए स्पीशीज, लार्ज बॉडी साइज, लेस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर देयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो फटाफट क्विकली, आज काफी क्वेश्चन हमें डिस्कस कर रहे हैं। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? और ये खूब पढ़ाया हुआ है आपको ना, जो है क्या कहते हैं, दोनों ने पढ़ाया है आपको। इकोलॉजी वाले पार्ट में जो है रिचा भारद्वाज मैम ने खूब डिटेलिंग में पढ़ाया है ये। ठीक है, तो आपको याद होगा कि क्या स्पीशीज है जब आप पढ़ रहे थे, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या कहते हैं 8 है। फटाफट से देखेंगे, इसको कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सो दैट इट बिकम लेजिटिमेट एंड विजिबल। यस, ठीक है। तो इसमें देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना काफी इजी है। इसको क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 8 को, तो क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट इन टू पॉपुलेशन एक्स एंड वाई आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है इसकी, और एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यूज दिखा रखी है, और ये ट्रेट दिखा हुआ है। ये पहले वाला जो है कर्व दिस इज एक्स, और दूसरे वाला कर्व जो वाई है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जब आपको पढ़ाते हैं, खूब अपने पढ़ाया है, तान्या मैडम का कोर्स भी आपके गूगल क्लासरूम में पूरा। ठीक है, तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि जैसे ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के अगर इक्वेट करें, तो सेंटर पॉइंट जो होता है दैट इज ऑलवेज मीन, जो मिड पॉइंट इसका रहेगा। ठीक है, दैट इज ऑलवेज मीन। तो अगर मैं लिखने पे जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, ये इसका म्यू रहेगा और ये इसका म्यू रहेगा। और जो इनकी स्प्रेड रहती है गाइस, जो इनकी स्प्रेड रहती है वो क्या रहती है, प्लस माइनस सिग्मा। अब जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना रहा हूँ ऐसे करके, और ये मेरी लाइन है, तो सेंटर पे मेरा म्यू हो गया। फिर मैं दूसरे दूसरे कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा तो आपको ये याद होगा कि जो आप अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन तक का एरिया कवर करते हैं, जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, -1 सिग्मा, ये +1 सिग्मा। तो ये वाला जो एरिया होता है, आपको याद आ रहा होगा, ये जो एरिया है इसकी कवरेज जो होती है कितनी होती है गाइस, 68% के आसपास, 68% डाटा सेट। फिर दूसरा अगर आप लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, ये हो गया -2 सिग्मा +2 सिग्मा। तो ये वाला जो एरिया है ये ऑलमोस्ट कितना कवर करता है, 95%। ये सबको आपको आता है अच्छे से ना। और मान लो मैंने एक थर्ड और ले लिया यहाँ पे 3 सिग्मा, और यहाँ भी ले लिया 3 सिग्मा। तो ये -3 सिग्मा, ये +3 सिग्मा। तो ये ऑलमोस्ट आपका 97% एरिया, सॉरी 99% एरिया को कवर करता है, ये आपको पता है। तो जितनी ज्यादा इसकी स्प्रेड होगी उतना ही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ग्राफ में मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें जो एक्स वाला है उसकी स्प्रेड थोड़ी कम है, वाई वाले की ज्यादा है। देखो इसके पास ये वाला एरिया काफी ज्यादा है इधर, और इधर भी काफी ज्यादा है, उसके पास तो छोटा सा है, मिड पॉइंट से सेंटर से देखेंगे छोटा सा है। तो ये तो बात मुझे पता चल गई कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वाई का हाईयर। अब ऐसे दो ऑप्शन है मेरे पास, वाई हैज हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई हैज हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब एक्स के बारे में क्या कहना है, एक्स के बारे में देखेंगे, पहले ऑप्शन में दे रहा है एक्स हैज हाईयर मीन, वाई हैज हाईयर मीन। तो भैया यहाँ पे तो मीन भी जो है वाई का ज्यादा है, जो मीन है वो भी वाई का ज्यादा है, इस वाली कर्व का मीन भी ज्यादा है अगर आप देखेंगे, क्योंकि इट इज कवरिंग मोर, इसकी ब्रॉडनेस भी मोर है, और सेंटर पॉइंट से अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो भी ज्यादा है। ठीक है, तो जो मीन है वो भी वाई का ज्यादा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, सो हेंस फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर। हेंस जो फोर्थ वन है आपका वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने मीन का आपको ये बताया था, यहाँ पे जो इसका मैक्सिमा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उससे आप इसको टच कराएंगे। तो y हैज हायर मीन एंड y हैज हायर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी स्प्रेड भी ज्यादा है, नंबर ऑफ सैंपल्स भी ज्यादा है, तो स्प्रेड भी ज्यादा है, तो मीन भी ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है। क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट। डी इज द करेक्ट आंसर हियर। जल्दी बताओ, सबको अंडरस्टूड हुआ कि नहीं हुआ? डी करेक्ट आंसर है इसमें।
वाई की दोनों चीज ज्यादा है, मीन भी ज्यादा है और वाई हैज हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो। जल्दी बताओ फटाफट, फटाफट बताओ जल्दी। निधि छिल्लर, रितांबरा सिंह, दीपक सोनी, ऑल अदर जो भी बैठे हुए हैं, किसी को कोई डाउट हो तो भाई बोल देना। सुरभि गुप्ता, ठीक है, अक्षिता शर्मा, जितने भी हैं, ठीक है, मैं बार बार नहीं देख पा रहा स्क्रीन में, ठीक है। चलो अब हम आगे चल रहे हैं, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्प्रेड ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें वो है नहीं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब ग्राफ चला गया है तो लेट मेक इट 100। हाँ 100 बहुत है। अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पहले गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन में, 12th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में भी कई बार आ चुका है ये। कहता है टू सिस्टर स्पीशीज ऑफ बुलबुल्स, दो बुलबुल की स्पीशीज है, ठीक है, टू सिस्टर स्पीशीज ऑफ बुलबुल्स हैव नॉन ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन ओवरलैपिंग है। वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एंड अदर वन इज श्रीलंका। तो भैया ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गए, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गए, अगर एक इंडिया में एक श्रीलंका में है, ठीक है। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ स्पीशिएशन इज द मोस्ट पार्सिमोनस एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न, कि कौन सा स्पीशिएशन होगा। तो ये आपको बताया हुआ है मैंने कि जब भी, देखो इसमें ध्यान रखना है, जब भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा तो एलोपेट्रिक होता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में सिम्पैट्रिक। ये पढ़ाया हुआ है सब कुछ ना आपको रिचा मैम ने। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में सिम्पैट्रिक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका ये हो गया, एलोपेट्रिक स्पीशिएशन हो गया, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इस केस में जो है एलोपेट्रिक स्पीशिएशन हो गया, क्योंकि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, क्योंकि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता तो सिम्पैट्रिक होती। उसके अलावा दो टर्म यहाँ पे और दी हुई है, एक दी हुई है पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक, पैरापेट्रिक गाइस कहाँ होती है? पैरापेट्रिक्स occur in those population when population is distributed over a large geographical range। बहुत बड़ी geographical range के ऊपर अगर population आपकी distributed है, ठीक है, और जो इंडिविजुअल है, ठीक है, लाइक कोई मान लो कि लाइक फार वेस्ट रीजन का इंडिविजुअल है, वो तो नहीं जाएगा ना, इट कैन नॉट मेट विद द इंडिविजुअल इन द फार ईस्ट रीजन। तो मान लो कोई बहुत इधर रहता है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है और एक यहाँ है, तो इनके लिए जो है बहुत लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, बड़ी रेंज के अक्रॉस ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, तब हमारे बोलते हैं उसको पैरापेट्रिक। फिर लास्ट में एक टर्म और दी हुई है पेरीपेट्रिक। तो गाइस पेरीपेट्रिक में कुछ नहीं है, पेरीपेट्रिक जो है वो एक तरह का क्या है आपका, जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो एलोपेट्रिक का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो वो एलोपेट्रिक का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो वो कब होता है? जब जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन है वो स्मॉल हो साइज में, ठीक है, आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन स्मॉल इन साइज। तो ऐसे देखा जाए तो ये क्या है, ये एक तरह का आपका एलोपेट्रिक का ही सब टाइप है, लेकिन कब? जब आपकी जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो स्मॉल हो साइज में। इज इट क्लियर? यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एलोपेट्रिक, क्योंकि मेरा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता तो हो जाता सिम्पैट्रिक। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट। एलोपेट्रिक स्पीशिएशन क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था गाइस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ये पहले भी आ चुका है, ये पहले भी आ चुका है। अच्छा आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, ठीक है। आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 पे क्या कहता है देखो फटाफट से इसको, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। और कई बार इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये एनटीए नेट में भी आया हुआ है, बस टर्म थोड़ी सी यहाँ पे अलग करके फर्क करके पूछी है। क्या कहता है? इन आर्कटिक ओशियन फूड चेन किलर व्हेल फीड ऑन सी वाटर्स।
मतलब किलर वेल जो है वो सी ऑटर को खाती है। तो यहाँ पे ना इसको बना लीजिएगा, ठीक है, किलर वेल, जस्ट अ मिनट, ठीक है। किलर वेल जो है ये काफी फेमस एग्जांपल है, कई बार ये आया हुआ है। तो किलर वेल जो है वो किस पे फीड कर रही है, सी ऑटर्स पे, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, विच फीड ऑन द सी अर्चिन, और जो आपका सी ऑटर है वो सी अर्चिन पे फीड करता है, बिल्कुल सही बात है भैया, दिस फीड ऑन सी अर्चिन, मान लिया, ठीक है। विच फीड विच इन टर्न फीड ऑन कैल्प, टाइप ऑफ सी वीड होता है कैल्प, और सी अर्चिन किस पे फीड करता है, कैल्प पे, एक तरह का सी वीड है कैल्प। एन इंक्रीज इन द अबंडेंस ऑफ किलर वेल causes sea otter abundance to decline, जब किलर वेल की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सी ऑटर की पॉपुलेशन भी कम होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा किलर वेल होंगी तो उनको डिमांड होगी, वो खाएंगी ज्यादा, लीडिंग टू हाइयर सी अर्चिन। लेकिन सी अर्चिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब सी ऑटर कम होगा तो सी अर्चिन बढ़ जाएंगे, विच इन टर्न रिड्यूस द अबंडेंस ऑफ कैल्प। अब क्या होगा कि वो सी अर्चिन जो है वो कैल्प को बहुत ज्यादा खाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब दिस फिनोमेना। अब देखो गाइस, कभी भी ऐसा जो अगर चीज आपकी होती है ना, चाहे वो इकोलॉजिकल लेवल में ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे हो चाहे नीचे पे हो, तो कभी भी किसी इकोलॉजिकल फिनोमेना जिसपे ट्रिगर हो बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ टॉप प्रीडेटर, मान लो टॉप प्रीडेटर आपने कोई भी हटा दिया यहाँ से, जैसे यहाँ पे केस में हमारा क्या है, टॉप प्रीडेटर हमारा किलर वेल है, इसको आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व अ रेसिप्रोकल चेंज इन द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे थ्रू फूड चेन। तो ये रेसिप्रोकल चेंज होगा, इसको हमेशा ना एक स्पेसिफिक टर्म आती है, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक कैस्केड। तो क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक कैस्केड, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसकी एक स्पेसिफिक टर्म होती है, दिस इज नोन एज ट्रॉफिक कैस्केड। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है, एंड दिस टर्म ये एनटीए नेट जेआरएफ में भी कई बार आया है क्वेश्चन। तो ट्रॉफिक कैस्केड इज द करेक्ट आंसर है, ट्रॉफिक कैस्केड, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है ट्रॉफिक कैस्केड। और ये जो फूड चेन आपको दी हुई है, ये अच्छे खासे एग्जांपल्स में है, कमर्शियल हार्वेस्टिंग ऑफ सी ऑटर्स, जो एनहाइड्रा लैट्रिस उसको बोलते हैं, अगर साइंटिफिक नेम बोलोगे, फॉर द फर की ट्रेडिंग होती है इसकी ना, इसका जो सी ऑटर का फर है उसकी ट्रेड होती है, ठीक है। तो वो ट्रिगर करता है इंक्रीज द सी अर्चिन एंड देन डिक्लाइन इन द कैल्प, ठीक है, बिकॉज कैल्प कंजम्पशन बाय द अर्चिन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टर्म को कहते हैं ट्रॉफिक कैस्केड। क्लियर है? हाँ, नेट में भी आया हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ ना, नेट जीआरएफ में भी आया हुआ है, तो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ, ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आपको पता है, गॉसेस ने दिया था, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी रिलेशनशिप भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये तो सारी टर्म पुरानी ही है। आगे आ जाओ फटाफट से, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जल्दी देखो फटाफट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।